Everyone, Namaskar. Bad loans worth rupees 10 lakh crore written off by banks in last 5 financial year, says Finance Minister श्रीमती निर्मला सीतारमन। नमस्कार फ्रेंड्स, जी सबके राइट ऑफ के डिटेल जानने के लिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। इसके पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन आंसर अकाउंट्स रिटेन ऑफ बाय द बैंक इन द लास्ट 4 years रुपीज 186 लाख करोड़ 8,48,186 करोड़ राइट ऑफ हुआ। रिप्लाई इन पार्लियामेंट बाय गवर्नमेंट, क्वेश्चन बाय कॉमरेड के सुब्रमण्यम ऑफ द सीपीआई। लोकसभा स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 67, राइट ऑफ द बैंक एनपीए। K. Subramaniam, will the Minister of the Finance be pleased to state the details of amount written off in respect of non-performing assets of banks between the year 2019 to 2022, account and bank wise, and B. the percentage of education loans to the total NPA. Answered by Finance Minister Honorable Nirmala Sitharaman ji. A and B, a statement is laid down by the table of house. उन्होंने इसके लिए एक डिटेल दिया कि 8,48,186 करोड़ के लोन राइट ऑफ हुए पिछले 4 वर्षों में, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22। और ये आंकड़ा उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और टोटल राइट ऑफ। अगर हम इसको एक 4 साल का डिटेल देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 6,06,510 करोड़ और प्राइवेट सेक्टर में 2,41,676 करोड़ और टोटल राइट ऑफ 8,48,186 करोड़। इसका बाइफर्केशन क्लिपिंग्स में दिया हुआ है, ईयर वाइज दिया है, इसे आप स्टडी करें। और उन्होंने और जवाब के बारे में बताया, स्टेटमेंट रेफर्ड टू इन द रिप्लाई टू पार्ट ए एंड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोकसभा स्टार्ट क्वेश्चन फॉर रिप्लाई ऑन 12 December 22, A and B as per Reserve Bank of India RBI guidelines and policy approved by banks board, NPA include inter alia those in respect of which full provisioning has been made on completion of 4 years are removed from the balance sheet of the bank concerned by way of the write-off. Bank evaluate consider the impact of write-off as a part of their regular exercise to clean up their balance sheet, avail of the tax benefit and the optimized capital. In accordance with the RBI guidelines and the policy approved by their boards, the borrower of written-off loan account continue to be liable for repayment and the process of recovery of dues from the borrower in written-off loan accounts continues. Bank continue to pursue recovery action initiated in written-off accounts through various recovery mechanisms available, such as filing of suit in civil courts or the debt recovery tribunals, action under securitization and the reconstruction of the financial assets, and Enforcement of Security Act 2002, filing of cases in the National Company Law NCLT, the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, through negotiated settlement, compromise, and through sale of the non-performing assets. Bank-wide details of NPA written off by scheduled commercial banks during 19 to 22 are as Annexure 1. Further, RBI has informed that under the provision of Section 45E of the Reserve Bank of India Act is provided for disclosing borrower-wise credit information. जैसा कि हमारे यूनियन ने भी डिमांड किया है कि डिफॉल्टर का लिस्ट आउट किया जाए, लेकिन आरबीआई के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके हिसाब से हम आउट नहीं कर सकते। और बैंक वाइज डिटेल बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक सबके 18 से 19, 19 से 20,
20-21 और 21-22 के जो भी रिटन ऑफ किए गए हैं उसके बारे में डिटेल दिए गए हैं। और इसमें अब इस बार वित्त मंत्री ने साफ साफ बताया कि राइट ऑफ क्यों करते हैं और क्या प्रोविजन होता है। एक छोटी सी बात है, जो भी अकाउंट हमारा एनपीए हो जाता है उसका हम 100% प्रोविजन जब कर देते हैं तभी उसको हम अपने बैलेंस से रिमूव करते हैं और राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि बारवर अपने जो ड्यूज हैं उसके लिए लायबिल नहीं है, केवल बैलेंस शीट को क्लियर करने के लिए राइट ऑफ किया जाता है और उसमें जो रिकवरी के प्रोसेस हैं वो गोइंग ऑन होते हैं। अब यहाँ पे दो बातें होती हैं जो हम रिकवरी मैकेनिज्म एडॉप्ट करते हैं, चाहे वो डीआरटी के थ्रू हो, चाहे एनसीएलटी के थ्रू हो, चाहे सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू हो, अथवा हम डायरेक्ट रिकवरी प्रोसेस करते हैं। और उन सब के बीच साथ साथ एक चीज कॉम्प्रोमाइज होता है, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। और ये सेटलमेंट डीआरटी के थ्रू भी हो सकता है, डायरेक्ट अप्रोच से भी हो सकता है, एनसीएलटी के थ्रू भी हो सकता है। वहां पे हम यहां पे क्लियर करना चाहते हैं कि राइट ऑफ और वेवर दो डिफरेंट चीज है। सपोज कर लीजिए कि अगर किसी बारोवर को हमारे ऊपर 31 मार्च 22 को 100 रुपए का ड्यूज था, आज हम दिसंबर के महीने में जब उसको सेटलमेंट करते हैं तो जो भी पॉलिसी आरबीआई की बनी है राइट ऑफ के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैंकों ने अप्रूव किया है, उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि अगर हमें 100 रुपए पे जब हम मार्च तक इंटरेस्ट हमने मान लिया, उसमें मार्च 19 तक लगाया था, उसके बाद से इंटरेस्ट उसमें नहीं लगाया है, तो जब हम उससे ड्यूज पूरा मांगेंगे तो मार्च 19 से लेकर डेट ऑफ द सेटलमेंट तक दिसंबर 22 तक का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। सपोज कर लीजिए कि वो इंटरेस्ट 20 रुपए होते हैं, तो टोटल ड्यूज क्या होता है, 120 रुपया हुआ। पार्टी हमसे रिलीफ मांगती है, अगर पार्टी को हम 100 रुपए पर सेटल कर लेते हैं तो जो 20 रुपए अकाउंट में डेबिट नहीं किए गए हैं उस अकाउंट को हम वेवर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट जो अमाउंट हमें है वो हमें मिल जा रहा है। लेकिन पार्टी कहती है कि हम 120 नहीं, हम 120 के अगेंस्ट 120 ना देके हम 100 रुपए ना देके हम आपको 90 रुपीज देंगे। ऐसे केस में तब हमें दो चीज होती है, एक तो हमें इंटरेस्ट वेवर करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट हमारा पार्टी से ड्यू था 19 से लेके दिसंबर 22 तक का, वो हम छोड़ रहे हैं, यानी 20 रुपए वो छोड़ रहे हैं, तो दैट इज द वेवर अमाउंट। और जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस 100 रुपए है, पार्टी केवल 90 दे रही है, तो 10 रुपया मैं उसको छोड़ रहा हूं, तो अपने बुक्स से 10 रुपया हटाने के लिए उसको हम राइट ऑफ करते हैं और दोनों अमाउंट को मिला के हम अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस कहते हैं। चूंकि ये टेक्निकल मामला बैंक से रिलेट करता है तो अक्सर हमारे लीडर्स या थोड़ा पॉलिटिकल पार्टियां इस पे उंगली उठाती हैं, लेकिन दीज आर द रेगुलर एक्सरसाइज। हाँ, रिकवरी के प्रोसेस राइट ऑफ होने के बाद कितनी सख्ती होनी चाहिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, केवल सिविल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, ये सब मुद्दा पॉलिटिकल डिस्कशन का है, क्योंकि कोई बैंकर इसके बारे में अपनी ना राय दे सकता है ना इसको कुछ आगे ले जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।